Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the Best of Cat Aladia practice series. Let's begin with today's session. And as always, first pause this video right here itself, try this set yourself, and then proceed on with the rest of the solution. Right, so let's start reading this. So what do we have here? A farmer has a rectangular land containing 205 trees, right? He distributed that land among his four daughters, Abha, Beena, Chitra, and Deepti, A, B, C, D, by dividing the land into 12 plots along three rows, X, Y, Z. So these are the three rows and four columns, 1, 2, 3, 4, as shown in the figure below, right? So basically, हमारे पास total 4 by 3, 12 plots है जो चार daughters में distribute होने वाले हैं. उनमें total number of trees कितने हैं? 205. The plot in rows XYZ contain mango, teak and pine trees respectively, right? So इसमें क्या है? Mango, then we have a teak, and then we have pine trees in this. Each plot has trees in non-zero multiples of 3 or 4, and none of the plots has the same number of trees. Now पहले कभी भी इन 12 plots में same number of trees नहीं है. Also हर एक plot में जो number of trees हैं वो क्या होना चाहिए? मल्टीपल्स, नॉन जीरो मल्टीपल्स ऑफ 3 या फिर 4. अब 3 या फिर 4 का मल्टीपल्स मतलब या तो 3 होंगे या तो 4 होंगे या मे बी 6 हो सकता है या मे बी 8 हो सकता है एंड सो ऑन. ठीक है, ऐसे नंबर्स ही हो सकता है आपका हर एक प्लॉट में जो नंबर ऑफ ट्रीज है. क्लियर? देन each daughter got an even number of plots, right? So ये जो 12 plots है वो even में divided है, right? So let's write down the names first. So A, B, C and D. ठीक है, so अगर हम plots की बात करें, इनमें हमारे 12 plots divided होंगे, राइट? अब वो 12 प्लॉट्स ऐसे डिवाइडेड है कि सबके पास एक तो पहले इवन नंबर आना चाहिए. अब इवन नंबर क्या हो सकता है? 2, 4, 6, 8, लाइक 10 ऐसा कुछ होगा. बट जैसे बहुत बड़े बड़े नंबर तो सब में नहीं जाएंगे, लाइक 12 ही तो हमारा मैक्सिमम है. सो 2, 4, 6, 8 के कुछ वैल्यूज आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, इवन सब में आना चाहिए. लेट्स लुक फॉर मोर कंडीशंस. इन द फिगर द नंबर मेंशन्ड इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, जैसे कि ये 12 या 21, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? द नंबर ऑफ ट्रीज इन दैट प्लॉट, व्हाइल द latter, like while the letter in the bottom right corner is the first letter of the name of the daughter who got that plot. For example, Abha got the plot in row Y and column 1, right? So containing 21 trees. So इसकी बात कर रहा है row 1 and column 1 में 21 is the number of trees और ये किसको मिला? A को मिला. Clear? So उसने ये पूरा distribution समझा दिया. Some information in the figure got erased, but the following is known. Now, Abha got 20 trees more than Chitra, but 6 trees less than Deepti. So, ये number of trees की बात करता है. Now, let's write that down. So, based on the number of trees, what information do we have? Abha got 20 trees more than Chitra. So, let's say, अगर चित्रा के पास number of trees x है, so Abha के पास कितना होगा? 20 more than Chitra. So, this has to be x plus 20. बट 6 ट्रीज लेस देन दीप्ति, तो आभा क्या ही है? आभा का इससे 20 ज्यादा है बट 6 लेस देन दीप्ति. सो दीप्ति का क्या होगा? x प्लस 20 से 6 एक्स्ट्रा, दैट इज x प्लस 26, राइट? सो दैट इज द फर्स्ट कंडीशन. नेक्स्ट, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रीज इन अ प्लॉट वाज 32 बट इट वाज नॉट विद आभा. तो आभा के पास हमारा किसी भी सिंगल प्लॉट में 32 नहीं होगा, विच इज एक्चुअली द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रीज इन अ प्लॉट, राइट? ओके. Third, the number of trees which are teak trees in column 3, teak trees in column 3, यहाँ पे teak trees in column 3 was double that in column 2. So ये वाला इसका डबल है, but was half that of in column 4. Simple relation, ये वाला इसका डबल है और ये वाला इसका हाफ है. तो सिंपल क्या कर सकते हो? x तो यूज कर चुके हैं ना. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला सपोज यहाँ पे m है, सो ये कितना होगा? 2m, और ये वाला इसका हाफ है, सो इट हैज टू बी 4m, राइट? सो ये जो y है दैट इज द टोटल नंबर ऑफ टी ट्रीज, उसका टोटल हमारा एडिशन भी तैयार हो जाएगा. 4m 2m m, दैट इज 7m प्लस 21, 7m प्लस 21. ओके, let me do this in a lighter color so that you'd be able to see that. So 7m plus of 21. Perfect. So this statement is now done. Third point. Both Abha and Beena got higher number of plots than Deepti. So it is talking about the breakdown of the plots. So both
both Abha and Bina, both A and B got higher number of plots than Deepti. अब याद करो ये जो नंबर ऑफ प्लॉट्स थे वो इवन नंबर थे सबके. अब 2 4 6 8 यही सब नंबर पॉसिबल है, तो इन दोनों को इन दोनों से ज्यादा मिलना चाहिए. राइट, तो अभी इन दोनों को क्या मिल सकता है? बोथ हायर नंबर ऑफ प्लॉट्स एंड दीप्ति. फॉर एग्जाम्पल अगर दीप्ति का सपोज 4 है, सपोज 4 रखा हमने, अगर गलती से भी इसका 4 हुआ, ठीक है, तो इन दोनों का 4 से ज्यादा होगा तो कम से कम 6 होगा ना दोनों का, कम से कम मिनिमम. तो 6 दोनों का मिला के तो 12 हो जाएगा अब एन बीना का, बट वो तो पॉसिबल नहीं है. सो दैट मीन्स हम डेफिनेटली कंक्लूड कर सकते हैं कि आभा एंड बीना गॉट हायर नंबर प्लॉट्स एंड दीप्ति, तो दीप्ति का कितना होगा? 2 ही होगा. सो इट हैज टू बी 2. अब आभा एंड बीना का दोनों का हायर नंबर है किससे? दीप्ति से. तो अब यहाँ पे नंबर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा सोच के देखो. जैसे दीप्ति का हमने 2 कंफर्म बोल दिया है, आभा एंड बीना, राइट, आभा एंड बीना का दोनों का 2 से ज्यादा होना चाहिए. अब लेट्स से अगर मैं लीस्ट रखता हूं, आभा एंड बीना का मान लो 4 4 रखता हूं, इन दैट केस क्या होगा? इन दोनों का मान लो ए और बी का 4 4 हो जाएगा. 4 + 4 इज 8, 8 + 2 इज 10. तो सी का हमारा मिनिमम पॉसिबल दैट इज 2 आएगा, और 2 कम से कम आना चाहिए बिकॉज इवन नंबर ऑफ प्लॉट्स है. तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ए एंड बी का एग्जैक्टली नंबर ऑफ प्लॉट्स आपका 4 4 ईच ही होगा. अगर किसी का भी एक भी नंबर ऊपर गया, फॉर एग्जाम्पल 4 के साथ मान लो ए एंड बी में 4 एंड 6 चला गया, तो 4 6 2 12 बन जाएगा, तो फिर हमारा सी के लिए 0 बचेगा. दैट इज नॉट पॉसिबल. राइट, सो ए एंड बी का हमारा क्या हो जाएगा? 4 4 ईच हो जाएगा. एंड विद दैट सी का भी हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, दैट इज राइट. सो सी के 2 प्लॉट्स होंगे, ए के 4 प्लॉट्स, बी के 4 प्लॉट्स एंड डी के भी हमारे 4 प्लॉट्स. करंटली हमारा ए का 2 है, सी का 2 है और बी का हमारा 1 है. लेट्स रीड फर्दर. नेक्स्ट, ओनली बीना चित्रा एंड दीप्ति गॉट कॉर्नर प्लॉट्स. नाउ इसमें अगर हम कंडीशंस प्लेस करना स्टार्ट करें, सो बी सी डी ही हमारा कॉर्नर प्लॉट्स हो सकता है. मतलब यहाँ पे बी या सी या डी आ सकता है, और यहाँ पे भी कॉर्नर है तो यहाँ पे भी बी या सी या फिर डी आ सकता है. ठीक है, ये कंडीशन हो गई. दीप्ति गॉट 2 एडजॉइनिंग प्लॉट्स इन द सेम रो. तो 2 बार लगातार डी आना चाहिए एडजॉइनिंग, ठीक है, इन द सेम रो. अभी वो हमारा कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी डी हो सकता है. राइट, बाय द वे डी का हमारा 2 ही है ना, सो वो 2 डी जहाँ पे भी आएगा वो एडजॉइनिंग ही आएगा, एडजेसेंट होगा इन द सेम रो. राइट, सो इट कुड बी अ डबल डी डबल डी. देखते हैं, पॉसिबिलिटीज अभी हमारे पास काफी है. सो लेट्स कीप दिस स्टेटमेंट ऑन होल्ड. 7, Bina was the only one who got a plot in each row and each column. So Bina is the only one who got a plot in each row and each column. तो सब में एक एक बी तुम्हारा आना चाहिए. राइट, इसमें भी बी अभी यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, इसमें भी एक बी आना पड़ेगा, इसमें भी एक आपका बी आना पड़ेगा. अगेन हैव चॉइसेस. लेट्स कीप दिस स्टेटमेंट ऑन होल्ड. 8 पॉइंट, चित्रा एंड दीप्ति डिड नॉट गेट प्लॉट्स विच आर एडजेसेंट टू ईच अदर. नाउ नोटिस करके देखो, सी हमारा 2 जगह यहाँ पे है, सी हमारा ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, सी और नहीं आना है. ठीक है, बाय द वे अगर सी कहीं पे नहीं आना है तो सी आप यहाँ से कैंसिल आउट भी कर सकते हो, है ना. सी तो यहाँ पे चॉइस की तरह एलिमिनेट हो गया. अच्छा, चित्रा एंड दीप्ति डिड नॉट गेट प्लॉट्स विच वर एडजेसेंट टू ईच अदर. अब एडजेसेंट में रो वाइज, कॉलम वाइज और डायगोनल सब चलेगा. तो मतलब अगर नोटिस करके देखो, सी यहाँ पे है तो डी यहाँ नहीं हो सकता, क्रॉस लगाते हैं. सी यहाँ है तो यहाँ पे भी डी नहीं हो सकता. सी यहाँ पे है तो ये भी ब्लॉक हो गया. सी यहाँ पे है तो यहाँ पे भी डी नहीं हो सकता. सी यहाँ पे है तो यहाँ पे भी डी नहीं हो सकता. तो डी के ये 4 चॉइसेस एलिमिनेट हो गए. अब उसने बोल रखा है कि डी के जो 2 प्लॉट्स हैं वो एक ही रो में एडजेसेंट होने चाहिए. सो कहां पे चॉइस बची? यहां हो नहीं सकता, यहां हो नहीं सकता. सो इट हैज टू बी बोथ दीज. सो ये दोनों जगह तुम्हारा क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा. तो अब तुम्हारा सी सेटिस्फाइड है, दिस 2 इज नाउ सेटिस्फाइड. ये डी भी हमारा 2 बार आ चुका है, दिस इज ऑल्सो नाउ सेटिस्फाइड. सो लेट्स रिमूव दिस पॉसिबिलिटी फर्स्ट. अब यहाँ पे तुम्हारा डी भी नहीं आ सकता, सी भी नहीं आ सकता, तो यहाँ ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? तुम्हारा बी आ जाएगा. Right, so that B is also done. Let's remove these crosses now. क्लियर. सो ये हो गया हमारा. अच्छा, अब हमारे पास मेन कंडीशन एक तो, जैसे अगर हम प्लेसमेंट करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू प्लॉट्स, सो सी हो चुका है हमारा, डी हो चुका है. ठीक है, 1 2 बी आ चुका है. हर कॉलम में तुम्हारा एक बार बी आना पड़ेगा और हर रो में तुम्हारे पास एक बार बी आना पड़ेगा. राइट, सो एक चीज क्लियर हो गई. जैसे फर्स्ट वाले रो में डेफिनेटली यहाँ पे हमारा बी आएगा ही आएगा. सो इस वाले रो में एक बी आ चुका है, इस रो में एक बी है, तो इस वाले रो में एक बी आना है, तो डेफिनेटली यहाँ पे तो बी नहीं होगा.
बिकॉज 3 बी ऑलरेडी है, इस रो में भी एक बी तुम्हें प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो चौथा हमारा बी होगा। सो इस पर्टिकुलर रो में कोई भी बी हमारा प्रेजेंट नहीं होगा। सो यहाँ पे क्या होगा, फिर हमारे पास एक ही चॉइस बचती है यहाँ पे ए के आने की। राइट, अब बहुत सिंपल हो जाएगा। इसके बाद अगर नोटिस करो तो इस रो में कहीं ना कहीं आना है ना, कॉलम में भी तो आना है। सो इस कॉलम में बी है, इस कॉलम में बी है, इस कॉलम में अभी तुम्हारा बी आना बाकी है। सो इट हैज टू बी बी हियर। सो यहाँ ऑटोमेटिकली क्या चलेगा, तुम्हारा बी आ जाएगा। एंड विद दैट तुम्हारे 4 बी मिल गए, और बाकी के बच्चे तुम्हारे 4 ए सेटिस्फाई होने, जिसमें से 1 2 3 ए ऑलरेडी है। सो दिस हैज गॉट टू बी राइट। सो वी हैव लाइक क्लियरली मेंशन्ड कि हमारा किस प्लॉट में किसको कौन सा प्लॉट किसको बिलोंग करता है। फाइन। सो ये हो गया हमारा 6 पॉइंट, ये हो गया हमारा 7 पॉइंट, ये हो गया हमारा 8 पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द प्लॉट्स। फाइनली व्हेन इट कम्स टू द 9 पॉइंट, दिस सेज द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज वाज डबल द नंबर ऑफ टीक ट्रीज। नाउ टीक ट्रीज का टोटल याद करो, हमने लिख रखा है टोटल। टीक ट्रीज का टोटल कितना है, 7m+21। सो मैंगो ट्रीज का हमारा जो नंबर है वो टीक का क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। सो 7m+21 का डबल हो जाएगा ये पूरा रो। सो दिस हैज टू बी व्हाट, 14m प्लस ऑफ 21, सॉरी 14m+21 का डबल, दैट इज 42। राइट, सो दिस हैज टू बी 42। नाउ व्हाट डू वी डू फर्दर इन दिस। अब हमें कहीं ना कहीं ये m वगैरह की वैल्यू प्लेस करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज ये जो m है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स लुक एट दिस m इटसेल्फ। तो ये m जो था वो यही था ना, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ प्लॉट इज लाइक नॉन जीरो मल्टीपल्स ऑफ 3 और 4। सो ये हमने जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली में m की पॉसिबल वैल्यूज है। और ये भी ध्यान रखते हैं कि 205 इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, तो बहुत बड़ी बड़ी m की भी वैल्यूज नहीं हो सकती। नाउ इस रो और इस रो का ऑलरेडी अगर आप एडिशन चेक करोगे तो कितना है, 14m+7m दैट इज 21m प्लस 42+21 दैट इज 63। अब सोच के देखो, क्या बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज इसमें प्लग इन कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक लेट्स चेक द एक्सट्रीम, अभी फिलहाल एटलीस्ट जो एक्सट्रीम लिखा हुआ है जैसे 8। सपोज मैंने m को 8 रखा, तो ये कितना हो जाएगा, 8 1 8 8 2 16 168+63 ऑलरेडी हमारा क्या हो गया, 220 231 चला गया, विच इज ऑलरेडी क्रॉसिंग दिस 205। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, मतलब ये 8 नहीं हो सकता, तो 8 के ऊपर भी नहीं हो सकता। नाउ कैन वी हैव अ 6, अगर मैं m को सपोज 6 रखता हूं, तो 6 1 6 6 2 12 126+63, ये करेंटली कितना हो जाएगा तुम्हारा 189। नाउ दिस इज 189, ये दोनों रोज मिला के। और अगर आप z में नोटिस करोगे तो ऑलरेडी आपको दो नंबर तो दिए हुए थे, 28+9 इज 37। अगर मैं इसमें 37 ऐड करूं तो अगेन नोटिस करोगे ये हमारा 205 को क्रॉस कर जाता है। सो दैट ऑल्सो मीन्स कि हमारा m जो है, ये नंबर ऑफ ट्रीज विद इन अ प्लॉट, ये जो वेरिएबल हमने m लिया हुआ है, ये हमारा 6 भी नहीं हो सकता। सो द ओनली टू पॉसिबिलिटीज लेफ्ट आर 3 and 4। राइट, 3 and 4 ही हमारे पास पॉसिबिलिटी आई। अब जरा हम चेक करते हैं एक एक वैल्यू लेके, क्योंकि अगर यूनिक आंसर आ रहा है तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोडिक्शन तो अराइज करेगा। नाउ लेट्स चेक फॉर 3। सपोज m को मैंने 3 डाला, अब उससे होगा क्या, अगर मैंने m को सपोज 3 डाला तो मेरा एक्चुअली में देखोगे तो a का टोटल आ जाएगा। बिकॉज a का टोटल आ जाएगा तो वी कैन ऑल्सो गो फॉर c का टोटल, जो उससे 20 लेस है, तो c का नंबर भी निकल आएगा। सो लेट्स चेक, देखते हैं क्या होता है। तो सपोज अगर करेंटली अगर आप a का देखोगे नंबर, तो कितना है, 21 प्लस m प्लस 4m प्लस 9 दैट इज 5m प्लस ऑफ 9। ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, 5m प्लस ऑफ 30, 5m+30। अब हम क्या कह रहे हैं, सपोज मेरा m कितना हुआ, 3 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, 15+30 दैट इज 45। अब अगर a का टोटल मेरा 45 है, इफ दिस बिकम्स 45, लेट्स से अगर ये मेरा 45 बना, तो ये जो c है इससे 20 लेस है, तो इसको कितना बनना पड़ेगा, 25। देयर लाइज द प्रॉब्लम। क्यों, क्योंकि नोटिस करके देखो, अगर मेरा c का टोटल 25 है, तो c तो दो ही जगह है, दो ही प्लॉट है उसके, यहां 12 है, तो 25 - 12 यहां कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, विच कॉन्ट्रोडिक्ट्स दिस। राइट, कि ये जो m था हमने लिख तो दिया था, बट एक्चुअली में ये हर एक प्लॉट में जो वैल्यू है उसके पॉसिबल वैल्यूज थे। राइट, तो वो हमारे 3 4 के ही मल्टीपल होने चाहिए। तो हमारा सी फिर क्या आ जा रहा है, 25 - 12 दैट इज 13, विच इज नॉट पॉसिबल। हेंस वी हैव लाइक पिन पॉइंटेड दिस, कि
कि अब हमारा m जो होगा वो क्या हो सकता है, सिर्फ 4 हो सकता है. सो लेट्स रिमूव ऑल ऑफ दिस पॉसिबिलिटीज. ये 5m plus 30 रहने देते हैं. This goes, this goes, this goes. And now finally I can say the unique numbers. So क्या हो जाएगा अपने पास, it's quickly plug in. So ये 3 भी एलिमिनेट हो गया. So हर एक प्लॉट में जो हमारा नंबर ऑफ ट्रीज होगा वो किसका मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल होगा. और सिर्फ एक्चुअली में 4 ही पॉसिबल है, राइट. क्लियर, 4 ही हमारा पॉसिबल है. सो ये जो हमारा m होगा, राइट, ये जो हमारा m है ये कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा. सो इट हैज टू बी 4. तो ये कितना हो जाएगा 4 5 20, 20 प्लस 30, 5 इंटू 4 प्लस 30, 20 प्लस 30, दैट हैज टू बी 50, राइट. सो ये हमारा ए का टोटल कितना हो गया हमारा 50. अब ये अगर हमारा 50 हो गया तो इससे क्या हो जाएगा 20 लेस, दैट इज ये 30 हो जाएगा. ठीक है, अब ये 30 हो जाएगा तो ये हमारा उससे कितना हो जाएगा 26 एक्स्ट्रा है ना, तो ये कितना हो जाएगा 56. सो दैट मीन्स वी कैन एक्चुअली गो एड एंड राइट द वैल्यूज फॉर सी एटलीस्ट. सी का यहाँ पे कितना है 12 है, तो सी का टोटल कितना था हमारा 30, तो 30 माइनस 12, दिस वुड बी 18, राइट. आई होप दिस इज क्लियर टिल दिस पॉइंट. ऑल्सो एम की वैल्यू हमने कितनी ली हुई है 4 ली हुई है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा. और ये क्या हो जाएगा 4 4 16 हो जाएगा, राइट. सो दिस इज नाउ 16. ऑल्सो इस पर्टिकुलर रो का टोटल देखोगे तो कितना हो गया हमारा 21 प्लस 4 25, राइट. 21 plus 4, that is 25. 25 plus 24, 25 plus 24, that is 49, right. So ये हमारा कितना हो गया 49. So this is 49. तो ये उसका क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, दैट इज 98. राइट. अब हम इसके आगे जैसे इसकी भी वैल्यू निकालने पे ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज 49 और 98 तो हमें पता चली गया ना. 49 और 98 कितना हो जाएगा 100 और 50 होते तो 150, 150 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट. 150 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा, सो इट हैज टू बी 147. अभी 205 माइनस 147 कर दोगे तो इस रो का तुम्हारा टोटल सम आ जाएगा. सो 205 माइनस 147, सो दैट हैज टू बी 53 प्लस 5, 53 प्लस 5, दिस हैज टू बी 58. अब इस 58 में से तुम्हारे पास ऑलरेडी कितना है 18 प्लस 9, दैट इज 27, 27 प्लस 28 इज 55. तो 55 ऑलरेडी है, 58 चाहिए, सो दिस हैज टू बी व्हाट 3, राइट. सो ये हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया. ऑल्सो ऑल्सो अगर आप नोटिस करो तो आप इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हो. कैसे, इसका टोटल निकाल के, क्योंकि 50 ए है, 30 ए है, 56 ये अगेन 205 में से माइनस करोगे तो बी के नंबर ऑफ ट्रीज निकल जाएंगे. कितने हो जाएगा 50, 56 एंड 30, सो इट हैज टू बी 100 एंड 50, 56 इज 106, 106 प्लस 30, 136, और 205 का डिफरेंस, तो 205 माइनस ऑफ 136, सो दिस वुड बी व्हाट 64, 64 प्लस 5 69. सो बी के नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो जाएंगे 69. इसमें से हमारे पास ऑलरेडी कितना है 28, 3, 28 एंड 3 इज 31, 31 एंड 8, 31 एंड 8 इज 39, राइट. सो 39 एंड 69 का डिफरेंस, 39 एंड 69 का difference, so that would be what 30, right. 39, um, yes, 39 and 69 का difference, so it has to be what 30. so यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा 30 आ जाएगा. परफेक्ट. नाउ अभी तक कहीं ना कहीं अगर मैं नोटिस करूँ ये जो इन्फॉर्मेशन दी थी, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रीज इन अ प्लॉट इज 32, ये अभी तक यूज हुआ नहीं है, राइट. सो अब वो यूज होने वाला है, क्योंकि कहीं पे अभी तक मुझे 32 आता हुआ दिख रहा है नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो 32 आएगा. सो वो 32 हमारा इन दोनों में बिलोंग करेगा, तो इसीलिए डी का हमारा टोटल कितना है 56 है, राइट. सो इस 56 में एक नंबर तुम्हारा डेफिनेटली क्या होने वाला है 32, तो दूसरा नंबर हमारा क्या ब्रेक डाउन होगा 24 का. सो 32 एंड 24 इन दैट, मतलब यही नंबर आपके ब्रेक डाउन होंगे, बट वी कैन नॉट स्पेसिफिकली से यहाँ पे किस जगह पे कौन सा नंबर आएगा, बट वो दोनों डी के प्लॉट होंगे, दैट इज फॉर श्योर. सो वी कैन जस्ट सिंपली राइट दिस एज 32/24, यहाँ पे भी 24/32,
Right, so that is the final set. Now let's take a look at the problems. Now, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मैंगो ट्रीज वर देयर इन टोटल. सो मैंगो ट्रीज का टोटल काउंट कितना हो गया, 98. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ट्रीज रिसीव बाय ए बी सी डी इन दैट ऑर्डर, ए बी सी डी इन दैट ऑर्डर. सो 50, 69, 30 एंड 56. 50, 69 in that order, right? 50, 69, 30 and 56. So that is option A. How many pine trees did Chitra receive? So pine trees, Chitra. So एक ही है pine trees में Chitra, that is 18. Next, who got the plot with the smallest number of trees and how many trees did that? Okay, what was that question? Okay, who got the plot with the smallest number of trees and how many trees did that plot have? Okay, plot with the smallest number of trees and who had that plot? राइट, चेक कर लेते हैं. आभा विथ 4 ट्रीज, आभा का 4, उससे नीचे कुछ दिख रहा है क्या? बीना का 3 इज द लीस्ट, राइट. हाँ, मिनिमम वैल्यू आपका पूरा पूरा ग्रिड में आपका ये बी का 3 है, सो इट हैज टू बी सी ऑप्शन. विच कॉलम हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज, विच कॉलम हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज. अब देखते हैं इसको हम यूनिकली बता पाएंगे. 12 प्लस 21 दैट इज 33 प्लस 3 36. इसमें तुम्हारा कितना हो जाएगा, 18 प्लस 4 22 प्लस 30 दैट हैज टू बी 52. अब यहाँ पे 8 + 9 इज 17 है ना. 17 प्लस, अगर मैं मैक्सिमम भी करता हूँ, राइट, 13, 8 9 इज 17, 17 प्लस, अगर मैं यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं. 17 प्लस अगर 32 करते हैं तो 49 आएगा, और अगर हम 17 प्लस 24 करते हैं तो 41 आएगा. सो 49 या फिर 41. यहाँ देखोगे तो 16 एंड 28 ऑलरेडी वेरी बिग नंबर्स, राइट. 16 एंड 28 आर ऑलरेडी वेरी बिग नंबर्स, दैट इज 44. 44 में तुम कुछ भी ऐड कर दोगे ना, मिनिमम भी ऐड कर दोगे, तो इनके मैक्सिमम पॉसिबल से भी वो ऊपर डेफिनेटली निकल जाएगा. सो इट हैज टू बी विच कॉलम, दैट इज 4. Right, an interesting set, a mix of everything, like number breakdown, a bit of DI, a bit of arrangement, a bit of distribution, everything is there in this set. I hope you understood this. If you have any doubts, you can just put that in the comments. Thank you.